Hello everyone, welcome to this chit chat episode 12. I'm back after a break of a couple of weeks. So after that, market has been bullish. I talked about a target of 17,200 to 50, which has already been achieved, and now market is still above it. So as long as it is above 17,400, now what is in front of you is a Nifty futures hourly chart. So it is clearly visible here that whenever it dips near 17,200 over here, so there is buying seen. So as long as Nifty is above 17,200, let's say 17,150, 17,200, the uptrend is intact. Only below 17,150, it might go to maybe 17,000. But the options data shows that there is a resistance near 17,500. So maybe this week Nifty might be between 17,150, 200 and 17,500. So that is something which has to be seen. But of course, it is still bullish, no doubt, because if you see the EOD chart of Nifty, which I have been showing all the way from over here, that is, in fact, it is almost a very big anchor column now. So what this means is definitely bullish. It's just that there might be a retracement to create a column of four at least. So till when, like I said, as long as it is above 17,000, there is no worry as far as the bull trend is concerned, because the mid value of this column is 16,915. So only below 16,900, closing below 16,900 on Nifty spot, you can say that the trend is might go sideways. It's still not bearish, definitely. So it is still a buy on dip. That is what it means. Only problem, which is very clear to everyone, which does not need explanation. I have been saying it for the last so many weeks. It is the Bank Nifty to Nifty ratio. This is an intraday chart of Bank Nifty to Nifty on a 1 minute time frame. And I was talking about this support which got broken, and then after that, it was very clear that Nifty went up very sharply. Bank Nifty did try, but Bank Nifty is still facing resistance at higher levels. It is not sustaining above 37,000. So here there is a big anchor column. So unless that is negated by closing above this, Bank Nifty is likely to continue to underperform. So that is something which is has to be seen on the Bank Nifty futures hourly chart. Here, this level is 37,250. So let's say 37,300, and on the lower side it is 36,200. So this is a 1,000 point range which Bank Nifty has created for itself. So on any dip, you have to watch out for 36,200. On any rise, first it will be 37,000 and then 37,300. So it might remain range bound. You have to select strong stocks within Bank Nifty in case you are looking for long. For example, if Bank Nifty goes towards this support and shows that it might be reversing, then you need to identify the strong stocks in Bank Nifty. Instead of going long in Bank Nifty, you might as well trade in the strong Bank Nifty stocks. And if it goes higher and again faces resistance, you can look at the weak stocks in Bank Nifty. That is for maybe a couple of days or positional trading. Even on a EOD basis, this is a EOD chart of Bank Nifty to Nifty ratio, and this is definitely not bullish at all. It showed signs here, but then after that it is fizzled out, and since Nifty is very strong in terms of momentum, this is just a pullback. It's a reversal column. So in case this gives a double bottom, so that will be really bad for Bank Nifty. Of course, if it rises, for this to become bullish, there's a long, long time on a EOD basis. So which means Nifty has to take rest, has to go on sideways mode, and Bank Nifty has to cross 37,400. Only then there is chance of this ratio becoming bullish. Till then, it is Nifty strong and Bank Nifty weak as a relative on a relative basis to Nifty. Coming to some options for next week. This is the 17,350 call of 16 September. Though there was some bullish action in the last 1 hour yesterday, it is still not out of the woods. It needs to cross above 128, 130 for it to show strength. Above that, it might go towards 180 or 200 cutoff levels. On the put, on the 17,350 put, this is showing a bit of bearishness because it has clearly broken down. So this also tells me that maybe even Nifty might go sideways next week. So on a dip, you have to look for buying opportunity. On a rise, you have to look for selling opportunity. So I, from the charts, what it seems is between 17,150 and 17,400, 450 is what the Nifty range is likely to be.
Similarly, on the Bank Nifty options, this is the 36,700 call. So again, this is not bullish at all, because here you will see a huge bearish anchor column. So unless it crosses 500, here you will see it almost got negated here, but could not cross this 480, 500, and now it is at 295. But as long as it is within this range, Bank Nifty is range bound. Even on the put chart, you'll see something similar. It is definitely not bullish in any case. So Bank Nifty, even if it gets a dip, this put, unless it goes above 450, Bank Nifty might not have a momentum on the lower side. So what these options chart tell us, that whether there is momentum on the lower side or on the higher side. So that is what they tell us. People will talk about theta decay and all that, but unless that high is crossed, Bank Nifty will not get momentum on either side. So maybe again Bank Nifty 36,200 to 37,200, Nifty between 17,200 to 17,450. That is what it is likely to be for the first few days. And then maybe towards Wednesday, we might see a directional move. So let's see what happens. But as of now, it is still a buy on dip and sell on rise for both Nifty as well as Bank Nifty. So कुछ सवाल today I have with me Raju, who's going to discuss an excellent system which will be very good for Nifty trend followers. It is a stop and reverse system. Of course, I'll not waste your time. I'll ask Raju to explain it. So welcome Raju. Yeah, thank you, sir. तो इसमें कुछ सवाल नहीं है, तो मैं I'll make you the presenter. So आज जो हम बात करने वाले हैं वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट पे, अभी तक जो हम लोग डिस्कस बहुत यानी मेनी टाइम जो किए हैं थ्री बॉक्स रिवर्सल चार्ट, और ये सिस्टम भी है वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट. सो स्टार्ट करते हैं वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट का. इस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले एक वाइट फिगर में एक एंकर पॉइंट करके कॉन्सेप्ट है. सो एंकर पॉइंट क्या बताता है? अगर मान लो ये आपको दिख रहा हो कि ये इंट्राडे लाइन है, ये करेक्ट वर्टिकल लाइन. सो इस लाइन के बीच यानी ये पूरे दिन का मैक्सिमम एक्स या ओ कहां पे प्रिंट हुआ, उस एरिया को क्या बोलते हैं? एंकर पॉइंट. सो अगर आप देखोगे ये एंकर पॉइंट है. सो अगर हम इस डे का यहां से अगर हम काउंट प्लॉट ये ऐसे प्लॉट करें, सो एक लाइन ड्रॉ करता है. सो इस एरिया में यानी यहाँ ये जो दिख रहा है 17,112, सो ये एरिया एक बोलते हैं एंकर पॉइंट, जहां पे मैक्सिमम एक्स और वो उस दिन के लिए प्रिंट हुआ है. सेम अगर हम नेक्स्ट डे का बात करें कि नेक्स्ट डे कहां पे मैक्सिमम एक्स और वो प्रिंट हुआ है, सो इस एरिया में यानी 17,190 यहाँ पे मैक्सिमम एक्स और वो प्रिंट हुआ है. सो अगर ये एंकर पॉइंट यहाँ पे डिसाइड ये क्या इंडिकेट करता है, इस पे हम लोग बात करें. सो एंकर पॉइंट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझ में आता है. एक दूसरा, आपको स्टॉक ट्रेंडिंग में है या नहीं या साइडवेज है, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं. सो ये कॉन्सेप्ट पे हम आज बात करेंगे और ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है. सो एक अभी इसको डिलीट करते हैं. अब जो निफ्टी के लिए हम लोग बॉक्स साइज जो यूज करेंगे 0.05 into 1%. ये चार्ट दिख रहा है. अभी यहाँ बॉक्स साइज मैंने 1 सिलेक्ट किया है. काउंट में अगर जाओगे तो एक रनिंग हॉरिजॉन्टल काउंट करके, तो इसको आप ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिक ये एंकर पॉइंट प्लस ये अपसाइड और डाउन साइड एक काउंट ओपन होता है. सो अपसाइड काउंट और डाउन साइड क्या है? ये सॉर्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल काउंट है, वर्टिकल काउंट नहीं है. सो अगर अपसाइड काउंट अगर मुझे लेना है तो अप पे क्लिक करते थे और डाउन पे, ये जब ऑटोमेटिक प्लॉट नहीं होता था तब. सो अभी ऑटोमेटिक प्लॉट होता है. अभी हम इसके लिए जो मेथड जो क्या है कि अगर मान लो किसी पॉइंट से, इस पॉइंट से ही अगर हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये डाउन का है. अब हमको कहां पे हम बाई करते हैं? सो लास्ट जो भी 3 एंकर पॉइंट है उसके ऊपर जब भी प्राइस जाएगा, लास्ट कितना? लास्ट यानी अगर लास्ट 2 सॉरी, तो जो करंट का जो है उसमें इंक्लूड हो जाएगा 3 का. जैसे ये इस दिन का हम बात कर रहे हैं, यहाँ जब कर्सर आपको दिख रहा है.
सो ये 1 and 2, तो ये इसका जो है 16,000 समथिंग 574 है। सो अगर प्राइस 16,574 के ऊपर अगर जाता है इस दिन, तो आप बाय करें। सो आप देखो इस दिन नहीं किया तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, अभी सेल में ही सेशन। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 1 और 2 ये चला गया, ये खत्म, यानी प्रीवियस लास्ट 2 जो एंकर पॉइंट है उसके ऊपर अगर प्राइस ट्रेड हो रहा है तो आप बाय करें। सो यहाँ अगर लास्ट 2 डेज के ऊपर एंकर पॉइंट आया सो बाय करिए। तो ठीक है, एक मिनट राजू, 16,574 के ऊपर बाय हुआ तो इसका स्टॉप एंड रिवर्स ये नियरेस्ट स्विंग लो रहेगा? सर नहीं, वहां 16,574 के ऊपर बाई नहीं हुआ अभी, ये बाई हो गया इसलिए कि इस दिन बाई आपका नहीं हुआ है, ये सेकेंड है यहाँ, ओके ये ओके। इस दिन के बाई हुआ और उस दिन के लिए आपका बाई लेवल क्या था, इस पॉइंट के ऊपर अगर प्राइस अगर ट्रेड होता है। हाँ, तो वो बाय होने के बाद स्टॉप एंड रिवर्स का लेवल क्या रहेगा? तो अब लास्ट 2 फिर अगर इस दिन बाई हुआ तो 1 और 2 इसके नीचे जो भी स्विंग लो है, करेक्ट। सो ये सॉर्ट ऑफ यहाँ पे आप देखो तो इसका वैल्यू है लो 16,400। सो वो कुशन थोड़ा रखने का है आपके सिस्टम। सो इसके नीचे आपका अगर प्राइस जाता है तो हम लोग स्टॉप एंड रिवर्स फिर से हो जाएंगे, जो बाई किए हैं यहाँ वो सेल करेंगे। करेक्ट। अगर नहीं अगर जाता है सो फिर एवरी डे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल होते जाएगा, यानी एक एक ऊपर जाएगा। सो इस दिन जब हम देखेंगे तो इस प्रीवियस लास्ट 2 के जो भी लोएस्ट रहेगा उस एंगल के नीचे रखेंगे। सो ये और करेक्ट। इसमें इसके नीचे जो भी स्विंग लो रहेगा उसको मैंने प्लॉट किया। नहीं, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, थर्ड फिर इसका और इसका लो दिख रहा है। हाँ। सो ये स्विंग लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ट्रिगर नहीं हुआ। सो हम करेक्ट। लोग स्टॉप लॉस वहीं से प्लॉट करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे अब इस 2 के नीचे, यानी ये आपका स्टॉप लॉस रहा, तो इसके नीचे अगर जब तक प्राइस नहीं जाता है 16,574 तब तक हम लोग एग्जिट पोजीशन से नहीं करेंगे। सो एवरी डे आपका जो एंकर पॉइंट है अगर ट्रेंडिंग है तो ऊपर ऊपर जाते जाएगा, साइडवेज रहेगा तो उधर ही रहेगा। तो साइडवेज अगर बहुत ज्यादा साइडवेज होगा तो क्या होगा, आपको एग्जिट होगा। आप देखो आप कंटिन्यूअस ये अप साइड जा रहा है, तो हम एक एक एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आप ये जा रहे हैं। अभी इस दिन अगर हम देखें तो ये था यहाँ लास्ट 2, अब यहाँ पे आप देखो ये 3, ये दोनों था, ये जो 7 सितंबर ये लास्ट 2 का था फिर भी नहीं हुआ, एक को ये लास्ट के नीचे यानी आपका एग्जिट हो गया। तो आप जो पोजीशन यहाँ लिए ये 24 अगस्त को, सो आप एग्जिट हो गए 8 सितंबर। सो ये एंट्री समझ में आ गया, यानी लॉन्ग एंट्री कैसे हो। अब शॉर्ट एंट्री वैसे ही सेम इसके अपोजिट करना है कि लास्ट 2 यानी आपका जैसे ये स्टॉप एंड रिवर्स है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ लॉन्ग का, सो ऑटोमेटिकली सेल में चला गया। अब आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, लास्ट 2 यानी इसके ऊपर। सो जो स्विंग आई है वो स्टॉप लॉस आप कर रहे हैं। जो मतलब स्विंग जिस दिन, एक मिनट, जो दिन चल रहा है उसके पहले के 2 एंकर पॉइंट का लेवल देखने का। करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। ओके। सो इस दिन आपका सेल हुआ यानी 8 सितंबर। सो हम लोग को ये आपको लाइन दिख रहा है, यानी एक दिन ये दूसरे दिन। सो प्रीवियस लास्ट 2 का देखना है। सो लास्ट 2 का ये है हाईएस्ट, तो उसका जो स्विंग हाई रहेगा उसको हम लोग स्टॉप लॉस लेके चले। अभी करंट जो अगर इसका अगर देखें तो ये सेल। अब अगर नेक्स्ट डे यानी मंडे को अगर प्राइस इस स्विंग हाई के ऊपर अगर जाता है 17,400 के ऊपर 397 है, तो आपका सिस्टम लॉन्ग में चला। तो अभी एक चीज बताओ, अभी करंट जो है स्टेटस वो शॉर्ट है, वो शॉर्ट कहाँ पे आया, लेवल क्या था? सो ये आया आपको सॉर्ट ऑफ 17,353 के करीब में, यानी 350। और ये आया 17,300 वेडनेसडे को, वेडनेसडे को। करेक्ट करेक्ट। ओके। और आप और एग्जिट हो नहीं, जाएंगे एक कितने में? एक एक मिनट, जब शॉर्ट आया 350 के आसपास तब स्टॉप लॉस था, स्विंग आए विच इज 440 के आसपास। जी बराबर है। करेक्ट।
और अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया 380। 388 यानी ऑलमोस्ट 390 का आप पकड़ लीजिए। हाँ सो 390 में आपका स्टॉप हो जाएगा और आप यहाँ पे फिर से बाई हो जाएगा आपका सिस्टम। करेक्ट। सो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल सिस्टम है। अब इसमें इसका बेनिफिट क्या है कि अगर ट्रेंडिंग मूव है तो आपको जल्दी आउट नहीं करेगा, बराबर। बिकॉज आप देखो एंकर पॉइंट हमेशा अप 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 जा रहा है। ये साइडवेज मूव हुआ जैसे, सो ये मल्टीपल एंकर आपको इंडिकेट पहले ही समझ में आ रहा है कि ये एंकर पॉइंट समथिंग ये साइडवेज मूव हो रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है। सो आप ऑलमोस्ट यानी नियर टू टॉप और बॉटम आपका एंट्री और एग्जिट रहेगा बराबर। ट्रेंडिंग मूव के पहले का, ठीक है। सो ये निफ्टी का सिस्टम है सिंपल। आप पहले भी आप जाके देख सकते हो इधर। इनफैक्ट इसमें एक चीज समझ में आ रहा है मेरे को, जी जब भी एंकर पॉइंट्स ओवर पीरियड ऑफ 2-3 days आर सिमिलर, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, दैट विल बी अ गुड टाइम टू सेल स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स। ये बराबर है क्या ना? करेक्ट सर, बिकॉज हम्म। वहां पे तो ये इंडिकेट करता है कि ये सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है आफ्टर करेक्ट। ट्रेंडिंग मूव। जैसे जनरली क्या होता है, ट्रेंडिंग मूव के बाद साइडवेज मूव, फिर साइडवेज मूव के करेक्ट। बाद ट्रेंडिंग मूव। और ये इंडिकेट भी करता है कि अगर मल्टीपल एरिया में अगर एंकर पॉइंट सेम है, सो ये रेजिस्टेंस का भी इंडिकेट कर रहा है, यानी इस एरिया में समथिंग रेजिस्टेंस है, बराबर। ठीक है। सो उसके स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको स्ट्रेडल सेल करना है तो आप कर सकते हैं। या सो नेक्स्ट जो बैंक निफ्टी के लिए जो बॉक्स साइज है 0.10, सेम वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट है तो वन बॉक्स ही रखेंगे और रनिंग हॉरिजॉन्टल यहाँ प्लॉट किया। सो अगर ये सेल में है, सो मेरा बाई इस डेट को हुआ ओके। 24 अगस्त, और ये कंटिन्यूअस चल रहा है, इसलिए कि लास्ट टू के नीचे आया ही नहीं है कभी भी। आप देखो इधर बराबर। कहीं भी नहीं आया। सो इधर जाके आपको लास्ट टू के नीचे आया इसके, ये डेट 6 सितंबर। सो आपका सेल भी हुआ और एग्जिट भी हो गया। अब अगर यहाँ पे सेल हुआ तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये लास्ट टू का स्विंग हाईएस्ट। तो अगर ये अगर आप देखते हो तो 37,000 के करीब है। बराबर। फिर इस दिन जो हुआ इस स्विंग के ऊपर यानी 370, तो अभी अगर हम देखें तो कुछ भी प्राइस नहीं है 370। ये इस दिन जो है लास्ट डे, इस दिन आपका प्राइस ऊपर ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, लेकिन 36,929 यानी वही था। सो अभी भी सिस्टम सेल में है। सो सिंपल, अगर एंकर पॉइंट के लास्ट जो टू एंकर पॉइंट है उसका स्विंग हाई और स्विंग लो आप सिलेक्ट कर सकते हो एज ए स्टॉप लॉस, यानी स्टॉप एंड रिवर्स। मतलब थर्सडे को वीकेंड क्लोजिंग के पहले निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सेल में गए हैं क्लोजिंग, बराबर है? करेक्ट करेक्ट। ओके। सो कहीं ना कहीं ये जो प्राइस जो है, ये आपको प्राइस मूवमेंट भी समझ में आ रहा है कि साइडवेज मूव है। करेक्ट। सो साइडवेज मूव में आप और इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आपका फास्ट होता है, जैसे जैसे आपका ट्रेंड होता है। साइडवेज तो आउट कर देगा बाहर से। सो आप हमेशा जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उसमें आप बैठोगे। इवन निफ्टी अगर ट्रेंडिंग है तो उसमें आप रहोगे। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ट्रेंड नहीं हो रहा है, ये एंकर पॉइंट देख के समझ रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट। और ये इस मोमेंट पे अगर आप देखो ये 10 डेज यानी 7 8 10 डेज बैंक निफ्टी में मूवमेंट आया और वो आपको बराबर कैच करके दिया, हाँ वो भी है, बराबर। बिकॉज आप नियर टू लो, आपका एंट्री नियर टू लो है। तो इसके साथ एक्चुअली निफ्टी के लिए निफ्टी लॉन्ग शॉर्ट, उसके साथ स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल, ये अच्छा, बहुत सिस्टम अच्छा वर्क होगा इसमें। इवन इवन जो आप टीओवाई जो आप डिस्कस किए हैं कितनी बार जो वीडियो में, सो वो भी आप इस पे देख सकते हो। टीओवाई अगर सेल में आता है बाई में आता है वहां। अरे हाँ, टीओआई के साथ भी मर्ज कर सकते हैं सिस्टम, बराबर है। करेक्ट। हाँ, तो क्या? आप उसको
एक बार जाके यानी आप लोग देख सकते हो टीओआई को कि वहां बाई सेल आता है, अगर टीओआई सेल में है और इधर आपका स्विच सिस्टम सेल में आ रहा है, सो आप कंटिन्यू आप ट्रेड। सो कन्विक्शन यहाँ पे बढ़ेगा, बराबर। आपका सो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस आपको मिला रहेगा कि आपके स्टॉप एंड रिवर्स इस पॉइंट के नीचे हो। या सो सेम सिस्टम आप स्टॉक से भी आप रन कर सकते हो। अरे इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी तो ठीक है, इसमें ये भी समझेगा कौन सा स्टॉक ट्रेंडिंग में है और कौन सा साइडवेज में है, बराबर है। करेक्ट जी। सो अभी उसके लिए जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, अभी रिसेंट जो वोल्टास जो है, हम्म। काफी अच्छा मूवमेंट आया वोल्टास में। उसमें बॉक्स देखो साइज चेंज होगा ना। यहाँ पे बॉक्स साइज बॉक्स स्टॉक्स के लिए 0.15%, ओके। केवल रिवर्सल सेम रखना है, रिवर्सल में कोई चेंजेस नहीं। यहाँ से हम जाके प्लॉट कर दिए, रनिंग हो रहा है। अभी आप देखो ये अरे बाप रे। आपको बाई जो लेवल आया, ये सॉर्ट हम्म। ऑफ इधर आया कहीं 980 के करीब में, और 980 से अभी तक इसका एंकर पॉइंट कहीं नीचे आया ही नहीं, इवन सिंगल प्रीवियस के नीचे नहीं आया है। करेक्ट। तो कंटिन्यूअस ये दिखा रहा है कि ये अप ट्रेंड में है ये स्टॉक्स, और ये 1200 यानी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मूव हो गया, फिर भी आपको सिस्टम में इन करके अच्छा, ये जो डेली सेटअप रहता है अपना शाम को, तो ये बेसिकली सेम है ना डेली सेटअप जो पोस्ट रखा। करते हैं वो। तो मंगेश भाई जो ये करते हैं, सो यही हाँ। है आपका मेथड, डेली यही सेटअप। है डेली सेटअप। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी के उसमें मैंने केवल चेंज कहाँ पे किया है, थ्री कर दिया है, ये यानी जो आपको काउंट है उसका कुछ यूज कर सकते हैं क्या, पार्शियल बुकिंग या ऐसा कुछ। अगर सेम एरिया में से ही, अगर जैसे ये एरिया देखो सर, अगर सेम एरिया में मल्टीपल काउंट अगर अपसाइड या डाउन साइड का आता है, जैसे अपसाइड का काउंट आया, सो ये सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस जोन ये भी होता है। और हाँ, उसके ऊपर ब्रेकआउट है। दूसरा, अगर मान लो कि दो, अगर जैसे ये 1273 1262, ये काउंट अगर अचीव नहीं होता है और उसके नीचे आपका इमीडिएट अगर प्रीवियस एंकर के नीचे जाता है एंकर पॉइंट, सो ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कि ये ट्रेंड एंड होने वाला है। सो ये मतलब इसका जस्ट इसका और एक इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि जब तक ट्रेंडिंग है तब तक वो काउंट अचीव करते रहेगा। जब वो एक या दो काउंट अचीव नहीं करेगा, मतलब ट्रेंड अभी पॉज में है या रिवर्सल की तरफ जा रहा एग्जैक्टली, अभी जैसे ये वोल्टास का ही देखो आप, सो ये सॉर्ट ऑफ अभी ये 1273 1262 1239, ये तीनों काउंट अपसाइड का ओपन है, बाकी सब है। बराबर। काउंट अचीव हो गया है। सो अगर इस ये काउंट अचीव नहीं होता है और प्रीवियस एंकर के नीचे जैसे 1200 के नीचे अगर एंकर प्लॉट हो जाता है, सो ये इंडिकेट करता है ये प्राइस या तो साइडवेज या टर्न होने वाला है, यू एक टर्निंग एक होने काम करो ना, ये तो वोल्टास का ट्रेंडिंग मूव तो जबरदस्त दिखा है इसने। कोई साइडवेज स्टॉक दिखाओ जो वार्न किया कि ट्रेड मत करो, मे बी टाटा स्टील देखो। वाला। हाँ, जो टाटा स्टील, और क्योंकि टाटा वो बहुत स्टील आप ऊपर बात नीचे जा करें, रहा है। तो टाटा स्टील अगर देखें तो हर एक सिस्टम में के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है। 0.15% into 1 on 1 minute and plot running horizontal count. Okay. अकाउंट में जाकर रनिंग होरिजेंटल, तो आप देखो ये लो, ये एंकर पॉइंट तो एक ही लाइन में है कंटिन्यूसली। समझ में ये आ गया, और देखो मल्टीपल ओपन साइड काउंट ओपन हो रहा है। हम्म। तो जब ये अगर इधर जब ट्रेंडिंग था, तो आपको पैसा अच्छा दिया, साइडवेज में आपको क्लियर समझ में आ जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें दो चीज चेंज किया कि लास्ट टू एंकर पॉइंट प्लस स्विंग हाई और स्विंग लो। मतलब ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा टूल है नहीं, ट्रेडिंग कौन सा स्टॉक करने का, मोमेंटम। एग्जैक्टली। सो अगर अगर अपना जो डिफाइंड एज का जो ग्रुप में मोमेंटम ग्रुप करके एक स्टॉक्स हम लोग डेली अपडेट करते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे जो स्टॉक्स मोमेंटम में है वो यहाँ पे लिस्ट आपका रहता है। तो अगर आप राइट। देखें तो वोल्टास देखो, वोल्टास मोमेंटम में है। वोल्टास तो देख लिया। एक लेकिन औरो फार्मा ले लो, औरो फार्मा। हाँ, और दूसरा आप देखो, लेकिन टाटा स्टील नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली। सो ऑटोमेटिकली ये टाटा स्टील आपके ट्रेड में आएगा ही नहीं। करेक्ट। ठीक है, अभी रिलायंस मोमेंटम में है, अभी और फार्मा आप बोल रहे हैं, सो ये है और फार्मा।
और थोड़ा पीछे जाओ, जूम करो, जूम आउट। वो जो डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद उसका जो रिवर्सल हुआ वो कैसा दिखा, वो मेरे को देखने का। हाँ, ये डाउन ट्रेंड में था। हाँ। सो आपका बाई जो हुआ ये इस डेट को हुआ, हम्म। यानी सॉर्ट ऑफ 690 के करीब में आपका बाई हुआ, करेक्ट। और वहां से वो कंटिन्यू आपका एग्जिट हुआ इस डेट को, यानी 7th को हुआ है, 7 सितंबर को, अच्छा, 746 के करीब मतलब में। जो स्टॉक ईओडी में बेरिश है, उसमें भी काउंटर ट्रेंड का अच्छा 70-80 पॉइंट का मूव मिल सकता था लॉन्ग में। करेक्ट, बिकॉज क्या होता है कि ये पुल बैक आता है, एग्जैक्टली। यानी कोई भी डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, सो पुल बैक को आप इसमें ये सिस्टम अगर ट्रेंडिंग अगर है तो उधर आपको मिल जाएगा। और थोड़ा पीछे जाओ, जब उसका डाउन ट्रेंड चालू हुआ, हाँ, सो ये देखो, ये ये डाउन तो ट्रेंड है। नॉन स्टॉप डाउन ट्रेंड था। सो ये जब डाउन ट्रेंड था, सो कंटिन्यूअस डाउन, बराबर। इवन एंकर के नीचे गया ही नहीं, और जैसे आपका देखो बाई में आया, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट नियर टू बॉटम ये कैच। या अब इसमें इवन इवन सर जो यानी ऑप्शन का जो सिस्टम आप इस पे सेट कर सकते हो, जो वो निफ्टी मेरे दिमाग ऑप्शन। में वही आइडिया है। हाँ, एक तो ऑप्शन लॉन्ग के लिए मोमेंटम चाहिए, ये इमीडिएटली बोलता है कि मोमेंटम है कि नहीं है, तो लॉन्ग ऑप्शन कर सकते हो उसमें। सो ये मोमेंटम ग्रुप आप सेलेक्ट करके और इधर जो स्टॉक्स आता है उस पे आप चेक करो, और स्टॉप लॉस आपका ये अफोर्डेबल रहता है। ये चार्ट ऑप्शन पे प्लॉट हो सकता है। चार्ट प्लॉट हो जाएगा, बट उसमें मैंने चेक नहीं किया है कि वो कितने परसेंट बॉक्स साइज पे ये सुटेबल रहेगा इसके लिए। तो फ्यूचर पे ट्रैक करना ही अच्छा है। करेक्ट, लेकिन चार्ट प्लॉट हो जाएगा उधर। हम्म। सो ये सिस्टम है निफ्टी, बैंक निफ्टी प्लस स्टॉक्स का, जो वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट। नहीं, ये और तो कोई सर? इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट वन बॉक्स रिवर्सल पे पोजिशनल सिस्टम बन रहा है। ये तो इंट्राडे तो है ही है, हाँ, पोजिशनल सिस्टम भी बन सकता है। एग्जैक्टली। इवन आप ये देखो, ये जितने स्टॉक्स है मोमेंटम के, ये आईआरसीटीसी है, सिंडिगो, ये सब, सो इधर से ही आपको सिलेक्ट करने। सो एक काम करो, फर्स्ट, रिलायंस दिखाओ। रिलायंस जब वो मूव चालू हुआ 2180 से, ओके, जब नीचे से उसका स्ट्रांग मूव शुरू हुआ, तब देखते हैं कहाँ उसने बाय दिया था और अभी क्या स्टेटस है। सो ये सिस्टम हम काफी दिन से यूज कर रहे हैं। हाँ तो जितना आप यूज करने के बाद ही कन्विक्शन आता है। सो डाउन ट्रेंड आप बोल रहे हैं ना, और पीछे सर हाँ, बस बस। ये वाला ना, आप ये वाला मूव आई थिंक बोल रहे हैं। हाँ, 2160 से 2180 के बाद उसने अप ट्रेंड चालू किया। सो तो 2160 पे आपका बाई आया है, करेक्ट। 2160 पे, और वो कंटिन्यूअस, कोई भी लास्ट एंकर के नीचे नहीं, और ये आपका सेल आया इधर। मतलब 2160 का बाय और 2410 का सेल आया। करेक्ट, 24,110 पे। और मेरे ख्याल से तब तब डेफिनेटली रिलायंस का मोमेंटम लिस्ट में भी आया होगा। मोमेंटम लिस्ट 100% पुराना नहीं इधर, देख सकते ना। हाँ, तो इधर आया होगा, बिकॉज ये इसमें मोमेंटम में ही है। ये स्टॉप एंड रिवर्स भी सिस्टम हो सकता है, लेकिन साइडवेज जाता है तब थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा। हाँ, तो सो बेटर क्या है कि जो भी मोमेंटम लिस्ट में इधर स्टॉक्स आता है ना, सो करेक्ट। क्या होता है, मे बी पॉसिबल कि रिलायंस इधर साइडवेज में हो, तो यस। रिलायंस में ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आईआरसीटीसी अगर मोमेंटम है, आईआरसीटीसी ट्रेड करेंगे। सो हाँ। आपके लिए यूनिवर्स जो है वो हमेशा चेंज होते रहेगा, स्टॉक चेंज होते जाएगा। सो साइडवेज के बाद वो ट्रेंडिंग मूव आएगा तो ट्रेंडिंग में आप बैठेंगे। और इनफैक्ट जब मोमेंटम लिस्ट रोज अगर कोई ट्रेड ट्रैक करेगा, तो कभी कभी 10 स्टॉक रहते हैं, जैसे अभी भी बहुत स्टॉक है। और जिस दिन बहुत कम स्टॉक आएंगे, उस दिन समझो मार्केट सो गया है। हम्म, हेलो, हाँ हाँ। हाँ, सो इसलिए सर, इसलिए ये इधर के किसी से आप ट्रेड करो, बिकॉज या आपको नए नए स्टॉक मिलेंगे। करेक्ट। जरा एक सिर्फ और एक एग्जांपल, मारुति दिखाओ, मारुति।
क्योंकि ओके मारुति में उसने टीओआई में सेल दिया था, बीच में बाय भी किया, वापस सेल भी दिया, वो थोड़ा सा अच्छा ठीक है साइडवेज है, लेकिन इन अ स्मॉल रेंज। सो मेरे ये ख्याल इतने से टीओआई में उसने शायद 27-28 अगस्त को बाय दिया था, मतलब सितंबर के एक्सपायरी के स्टार्टिंग में। सो करेक्ट। ये यहाँ पे ये सिस्टम के हिसाब से यानी 27 का नहीं 30 को बाई में है 30 अगस्त को 67 30 67 40 के आसपास। करेक्ट और और उसके बाद उसके बाद में नीचे बाद आया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। नहीं हिट हुआ उसके बाद ये किधर हिट हुआ स्टॉप लॉस इधर था 68 90 पे। करेक्ट 68 90 तो फिर भी उसने ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का रन मिला। हाँ सो आपको आप काफी जो शॉर्ट पीरियड। टीओआई और इवन अगर टीओआई और इसको कंबाइन किए सो आपको याद था ये टीओआई में बाई आया था सो ये प्राइस करेक्ट। मूवमेंट पे आपको इधर एग्जिट भी करना मतलब टीओआई इज एन एडिशनल टूल, और उसके साथ स्टॉक का भी एंकर पॉइंट अगर यूज करेंगे तो उसका बहुत अच्छा सिस्टम बन सकता है। करेक्ट और एंकर पॉइंट काफी लॉजिकल है बिकॉज हाँ। ये पूरे दिन का या पूरे रेंज का एक डिसाइड करता है कि मैक्सिमम 100 वो किधर प्रिंट हुआ है यानी कितना डिमांड और सप्लाई बिकॉज मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे है सो करेक्ट। जिधर मैक्सिमम डिमांड और सप्लाई जहां एक एरिया में होता है वो शो करता है या सो ये सर सिस्टम ये था हाँ तो ये ये तो बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है ये। अगर किसी ने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया तो इट कैन प्रूव टू बी अ वेरी प्रॉफिटेबल सिस्टम। ऑफकोर्स आई नो यू आर डूइंग इट, बट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनी न्यू कमर ऑल्सो। वो मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना। नहीं काफी काफी सिंपल है सिस्टम और आप हम्म। देखो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का जो डेली पोस्ट करते हैं सो या उसमें ये काफी दिन से हम लोग यूज कर रहे हैं या Okay, thank you, Raju. I think people can definitely benefit for this from this stop and reverse. Yeah, at least identifying which stocks are in momentum, and this is a system which we have been using in-house. So definitely, people can start at least tracking it and then start using it for themselves. And at least this shows this will prove to you which what trade you should not do. I mean, something like let's say Tata Steel is not trending right now at all, so there is no point in buying options in Tata Steel. So only buy options when a stock is trending, because that is what is required for any options long. So that's how it will help you definitely. And uh, keep giving us your feedback on YouTube comments or on email or on Twitter, and we will keep coming up with these new systems. Thank you, Raju, and thank you, everyone. ओके थैंक यू